Okay, now my next topic is the measures of central tendency. We actually kya hai measure of central tendency? Let me tell you that four important things you will be calculating from your data. That is mean, median, mode, and the mid-range. Remember it by heart. These are the measures of central tendencies. So chapter 1 is stated that is statistics use samples taken from the population. However, when the populations are small, it is not necessary to use the samples since the entire population can be used to gain the information. For example, suppose an insurance manager wanted to know the average weekly sales of all the company's representatives. So if the company employed a large number of salespersons, say nationwide, he would have to use a sample and make the informations from that data. तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है once the data is large. Data small है तो बड़ा आसान है. It is easy to handle the data. उसी sample data ही को हम deal करके information निकाल लेते हैं. So initially I am going to take all the ungrouped data, small data. Okay, that is you can say this is a sample data. छोटा data लेंगे. तो इसके बाद हम measure of variations भी small data के लिए discuss करेंगे. Then also sure to the group data. I mean for bigger data where the frequency distribution is given, that is called the group data. Remember what is the difference between an ungrouped data and a group data? That ungrouped data is normally small size group data. There is no frequency in there. There is no classes in there. That is the ungrouped data. And group data, of course, it has the classes. I mean the class limits. Then you make the class boundaries also. Then frequency. So all the datas with class limits and the frequencies, if it is given, that is called the group data. So we will be taking the group data later on, but I will be making the concept clear before that by handling the ungrouped data. Okay. The four are the measures of the central tendencies. What? Mean, median, mode, and the mid-range. So see with the examples I'm going to explain. The mean. Mean also known as the arithmetic average. This is another name. You may call it the average value or the mean value. Is found by adding the values of the data and dividing by the total number of values. For example, mean of 3, 2, 5, 6 is 4. ठीक है? कैसे find किया हमने? 3 plus 2 plus 6 plus 5 plus 4 सबको add किया, we got 20 and the values are 5. So 20 divided by 5 is 4. Simple way. The average, how do we take? You had been taking this average in your class 6, 7. That is called the mean. So simple. See here. To show a sum of the total x values, the symbol sigma, this is known as sigma. You will be studying another sigma for the standard deviation later on, but this sigma is for the summation. Yeah, it means you sum up the values. The capital Greek letter sigma is used as sigma x means to find the sum of the x values in the data set. The summation notation is explained somewhere else also in appendix C. Now the formula for the mean is, the mean is the sum of the values divided by the total number of values. This symbol x bar is represented or represents the sample mean. So याद रखिएगा, what is the symbol for the mean? X and a straight line over it, that is the bar, the x bar. You sum up all the data values and divide by the total number of the data values. These are the n values, so divided by n. So sigma x upon n is the formula for the mean. You remember, you'll be using it even at the end of your course. आखिर में भी इस्तेमाल हो रहा होगा. So damn simple. The same formula, instead of a small n, if we write capital N,
then our x bar is replaced by mu. This formula becomes for the population, and the first formula is for the sample. So symbols will be different. The sample mean symbol is x bar, and population mean symbol is mu. This, see here, mu is the symbol. This is also a Greek letter. Capital N represents the total number of the values in the population. Small x represents the total number of values in the sample. ये है sample की value small n, total values, and capital N represents the total values in the population. ये तो सिर्फ कहने की बात होती है कि आप किस डाटा को पॉपुलेशन के तौर पे ले रहे हैं, एंड विच डाटा यू आर हैंडलिंग एज अ सैंपल. मैं अगर 1 से लेके 5 तक कुछ वैल्यूज लेता हूँ, जस्ट 1 2 3 4 5, एंड आई से दिस इज माय पॉपुलेशन, तो इसका मीन निकालेंगे तो यू विल राइट म्यू. लेकिन इफ आई से 1 से लेके 5 तक दिस इज माय सैंपल डेटा, तो इसका मीन निकालेंगे तो विल राइट एक्स बार. दिस इज अ मैटर ऑफ considering whether the data is a sample data or it's a population data. Mean is clear, I hope. Now see an example. The data represents the number of the days of per year for a sample of individuals selected from 9 different countries. Find the mean. In 9 different countries के लोग हैं जिन्होंने off days किए हैं in the year. 365 days जो साल में होता है, उसमें से इतने इतने दिन इन्होंने छुट्टी की है. आप इसका एवरेज निकालें, मीन निकालें. तो देखिए क्या तरीका कर रहा है. क्या करेंगे आप? जस्ट सम अप ऑल दीज वैल्यूज. तो जितनी भी वैल्यूज थी समड अप. द पर्सन्स वर 9, और टोटल वैल्यूज आर 9, so divided by 276 is the sum, divided by 9, answer is coming 37.7 days. Hence the mean of the number of days of is 30.7. Damn simple, nothing difficult in that. Next is same example for the same concept of mean. देखिए, hospital infections. The data show the number of the patients in a sample of 6 hospitals who acquired an infection while hospitalized. Find the mean. तो ये 6 हॉस्पिटल्स में जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, this is the number represented here as a data. You have to find the mean. As usual, you sum up all these values, divide by 6, because 6 is the number of values in the data. Answer is coming to be 64.8. So the mean of the number of hospital infections for the 6 hospital is 64.8. Simple, quite simple. So after this is a rounding rule, you can go through yourself. देख लीजिएगा कैसे rounding करते हैं. And next is mean, then median. This is an important concept. थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा इसको. बस मैं definition पढ़ रहा हूँ, बाकी तो उसने examples explain किया. I am reading this definition. The median is the midpoint. The median is the midpoint of the data array. ये थोड़ी देर पहले जब हमने उस जाइफ से भी पढ़ा था, how to find the median. It's a midpoint. The symbol for the median is MD. इसका कोई वैसे सैंपल के लिए x के ऊपर इक्विवेलेंस का निशान भी डालते हैं. That I'll let you know later on. x के ऊपर इक्विवेलेंस, यानी जैसे मद डालते हैं ना उर्दू की, like that. ये मीडियन का सिंबल हो जाएगा. वैसे नॉर्मली MD भी लिखा करते हैं. बोथ आर ओके. लेकिन मिड पॉइंट निकालने से पहले ये देखो एक लफ्ज वो बोल रहे हैं, डाटा अरे. Data array means the data has been arrayed. Arrayed means it has been arranged in the ascending order. Data को आप ascending order में arrange नहीं करेंगे तो you'll be getting a wrong value. So the first thing is that you must arrange the data. Median के लिए, mean के लिए भले आप ना करें, but median के लिए आपको करना जरूरी है. देखिए दो steps हैं, arrange the data in order and select the middle point. अब मसला ये है कि दो तरह की डाटा होंगे आपके पास. Either the data will be consisting of odd number of values, or the data may be consisting of even number of values. अगर odd number values है तो fine, good enough. अगर 9 values हैं डाटा में तो 4 on the left and 4 on the right arrange करने के बाद तो 5th value will be your median. Okay, वो तो आसान है, odd number है. लेकिन अगर 10 values हैं, ये even number आ गया, even number of values in the data,
तो अब आप इसकी मिडिल टू वैल्यूज लेके उनका एवरेज लेंगे, दैट विल बी द मीडियन। तो ये फर्क हो गया थोड़ा सा, दो फॉर्मूलाज बन गए। ऑड है तो फाइन, अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू ले लें। अरेंज तो आपको दूसरी सूरत में भी करना है, बट इन दैट केस अगर इवन नंबर वैल्यूज हैं तो मिडिल टू वैल्यूज आएंगी आपके पास, यू टेक बोथ ऑफ देम, add them and divide by 2, means this is the way you take the average. देखिए, see the examples. Hotel rooms, the number of rooms in the 7 hotels in downtown Pittsburgh is, ये सारा आपको डेटा आपको दे दिया है, 7 वैल्यूज हैं, ये नंबर ऑफ रूम्स के बारे में बात कर रहा है। फाइंड द मीडियन। तो पहले है अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। जिसने भी अरेंज नहीं किया एंड डायरेक्टली ही इज राइटिंग द मिडिल वैल्यू, ही इज गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो अरेंज कीजिए द लोएस्ट वैल्यू इन द बिगिनिंग, देन नेक्स्ट हायर एंड देन नेक्स्ट। द डेटा इज ऑड, 3 ऑन द लेफ्ट, 3 ऑन द राइट, तो मिडिल वैल्यू इसकी कौन सी आई? 401। ओके, सेलेक्ट द मिडिल वैल्यू, दिस इज द मीडियन। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखिए अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, find the median for the daily vehicles pass charges for 5, ये तो 5 है, तो 5 में भी 2 लेफ्ट और 2 राइट पे अरेंज करने के बाद ये भी मिडल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा tornadoes in the United States, the number of tornadoes that have occurred in the United States over an 8-year period follows, find the median। अगर 8 years का डेटा है तो डेफिनेटली इवन नंबर हो गया ना, 8 इज इवन नंबर, divided by 2 जो होता है वो even number। Nevertheless, you have to arrange the data in the ascending order, कर दिया। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, these two are in the middle, 764 and 856। तो आपने इसका मीडियन निकालने के लिए मीडियन will be in between these two, तो कैसे निकलेगा? Just sum of these two and divide by 2, I mean take the average of the middle two values। So since the middle point falls halfway between 764 and 856, find the median MD by adding the two values and dividing by 2. So sum up, divide by 2, 1620 divided by 810. The median number of tornado risk is 810. हालांकि ये आप देख रहे हैं कि 810 is nowhere in the data, इस डेटा में नहीं मौजूद है, but nevertheless this is the value of the median। Mean median is clear? I'm sure these are very simple concepts। और ये अनग्रुप डेटा अभी तक मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए अभी तक हमने कोई फ्रीक्वेंसी वाली टेबल नहीं ली, किसी में क्लासेस नहीं ली, अभी वो लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। बट फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मीन मीडियन इज ओके। नाउ इज द मोड। मोड इज वेरी इजी। मोड क्या होता है आपके सामने डेफिनेशन है, द वैल्यू दैट occurs most often in the data set is called the mode। ठीक है, वेरी सिंपल। आपकी बुक बहुत अच्छी है, देखिए the author has written very specific definition in one line only, he has explained that concept। तो क्या होता है कि किसी डेटा में a value which is mostly repeated, that is the mode। अगर एक ही वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है तो this is called unimodal data। मगर ऐसा भी हो सकता है दो वैल्यूज आ रही हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के, जैसे 555 3 दफा आ गया और आगे 999 वो भी 3 दफा आ गया, और बाकी सब वैल्यू इससे कम है, कम तादाद में आ रही है। तो देन देयर विल बी 2 मोड्स। फिर उस सूरत में 5 भी मोड होगा और 9 भी मोड होगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर अपीयरिंग इक्वल फॉर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोनों ही ज्यादा मोस्टली रिपीटेड है। इसको हम कहेंगे बाई मॉडल। ये डेटा क्या कहलाएगा? बाई मॉडल डेटा। और अगर 3 या 4 या 5 वैल्यूज इक्वल फ्रीक्वेंसीज के साथ आ रही हैं तो हम कहते हैं वो मल्टी मॉडल डेटा। ठीक है, तो यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल चलते जाए तो मल्टी मॉडल। लेकिन अच्छा डेटा नॉर्मली वो होता है जिसमें यूनी मॉडल हो, ज्यादा बेहतर होता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं हो, मोस्ट ऑफनली अकर ना कर रही हो, सब एक एक दफा ही लिखी हुई है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 10 तक मैं वैल्यूज लिख दूं, डेटा तो हो गया, बट नो वैल्यूज रिपीटिंग, तो ये ज्यादा नहीं आ रही है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो
आप क्या कहेंगे? देयर इज नो मोड इन द डेटा, ऐसा भी हो सकता है। तो मोड के बारे में क्लियर कर लीजिए, या तो मोड बिल्कुल नहीं होगा, अगर है तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। A data set that has only one value that occurs when the greatest frequency is said to be unimodal. बाकी तफसील इसकी नीचे उसमें दी हुई है, ठीक है ना? बाई मॉडल है, मल्टी मॉडल है, यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इसकी एग्जांपल लेते हैं, देखिए NFL साइनिंग बाउंड बोनसेस। NFL तो आप समझते हैं ना क्या होता है? क्या होता है बताइए? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं सर, मुझे नहीं पता। ये तो सारे जो स्टूडेंट्स खेलने वाले होते हैं, खिलाड़ी टाइप के। पता नहीं, मैं तो कोई गेम खेलता नहीं, लिहाजा मुझे तो पता खुद नहीं होना चाहिए। स्टिल मेरा ख्याल है कि फुटबॉल होती है सर, यूएस नेशनल फुटबॉल लीग कहलाती है, आई होप। चेक कर लीजिएगा कहीं से, ठीक है ना? अच्छा, फाइंड द मोड ऑफ द साइनिंग बोनसेस ऑफ 8 NFL प्लेयर्स फॉर अ स्पेसिफिक ईयर। द बोनसेस इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर। इतने बोनसेस उन्होंने अपने प्लेयर्स को दिए, डेसिमल में भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है। 18.0, 14.0, 34.5, 10, 11.3, 10, 12.4 and 10. These are the bonuses issued. तो आप अब बताइए इसमें से मोड क्या है? मोड वो होना चाहिए जो अब मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल कैसे हो 10 रहा है, 10 है ना सर, 3 है? टाइम्स आ रहा है ना, ये यूनी मॉडल है भाई। एक है। ऐसा अच्छा, वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, एक वैल्यू है ना ये। ओके ओके ओके, गॉट हाँ, इट सर, गॉट इट। 10 is repeating 3 times. This is one यस सर, value. One means uni model. यूनी मॉडल, हाँ, गॉट इट सर। अगर 10 के अलावा 13 भी आता बार बार इसी तरह 3 दफा, और फिर 17 भी 3 दफा था, तो 3 डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं ना, मोड्स हो जाते। तो तो फिर हम इसको मल्टी मल्टी मॉडल तब कहते हैं। मल्टी अगर मॉडल 2 का, होता तो इसको हम बाई मॉडल कहते हैं। ओके, गॉट इट सर, गॉट एक इट की सर। वैल्यू बार बार आ रही है तो दिस इज यूनी मॉडल। सोल्यूशन: इट इज हेल्पफुल टू अरेंज द डेटा इन ऑर्डर ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी। इसमें हमें ऑर्डर में लाने की जरूरत नहीं। ऑर्डर में डाटा उसी वक्त लाना है कब, जब हमारा मीडियन निकालना मकसद है। ओके, इसको खैर उसने अरेंज कर दिया, तो इससे देखने से नजर आ जाता है कि विच वैल्यू इज रिपीटिंग मोस्टली। Since $10 million occurred 3 times a frequency larger than any other number, the mode is $10 million. This is no doubt unimodal. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी की है। Find the mode for the number of branches that 6 banks have. अब इसमें देखें कोई चीज रिपीट हो रही है कहीं? नहीं हो रही ना, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। Since each value occurs only once, there is no mode. कोई रिपीट ही नहीं हो रही, एक से ज्यादा टाइम आ ही नहीं रही, तो इसमें कोई मोड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइसेंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये डेटा दिया हुआ है, 15 ईयर पीरियड का है। तो आप बताएं कि अब देखो 104, ये फर्स्ट रो में पूरी 104 है, 5 टाइम्स आ गया। फिर 109 जो है, ये भी 3 टाइम्स यहाँ पे, और लास्ट ये 2 टाइम्स, 5 टाइम्स ये भी आ गया। तो 2 of the values are repeating with equal frequency. 5 times 104 and 5 times is 109. So how many modes are there? There are 2 modes. इसको हम कहेंगे bi-modal. So since the values 104 and 109 both occur 5 times, the modes are 104 and 109. The data set is said to be bi-modal. Right? Mode हो गया mean, median, mode. Next is the mid-range. ये last measure of central tendency है। Mid range क्या होती है? Mid range is a rough estimate of the middle. It is found by adding the lowest and the highest value in the data set and dividing by 2. It is the rough estimate of the average and can be affected by one extremely high or low values. पर mid range का formula है, the mid range is defined as a sum of the lowest and the highest values in the data set divided by 2.
द सिंबल MR इज यूज्ड फॉर द मिड रेंज, और कोई सिंबल नहीं है, MR मींस मिड रेंज। कैसे निकालते हैं? लोएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू में ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, ठीक है। हमारी नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। बहरहाल अभी जब तक है 10 मिनट में मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जी, ये डाटा आपके सामने। इन द लास्ट 2 winter seasons, the city of Bronzeville, Minnesota reported these number of water line breaks per month. Find the mid range. ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आप ढूंढ लें the lowest value. Lowest value is 1. The highest value, this is 8. इन दोनों को ऐड कर दिए 9 divided by 2. 9 by 2 equal to 4.5 is the mid range. कितना सिंपल है ये, कोई मुश्किल नहीं। एक क्लास 2 के बच्चे को बता दो कि सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो डाटा में और सबसे बड़ी, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, दैट इज डैम सिंपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिड रेंज। तो आपके पास 4 वैल्यूज हैं सेंट्रल टेंडेंसीज की। कौन कौन सी पढ़ी है भी आपने, याद यही भी कर लें, ये ना सोचे टाइम बाद में मिलेगा। क्या हमने पढ़ा? मीन, मीडियन, मोड एंड द मिड रेंज। चले थोड़ा सा आगे और देख लें। And there are 4 values for the measures of variation. ये उससे अलग है। Measures of central tendencies के बाद आ रहा है हमारा next topic, measures of variation. तो in statistics, to describe the data set accurately, statisticians must know more than the measures of central tendencies. इसके अलावा भी आपको कुछ जानना चाहिए होता है, that is necessary. तो वो measures of variation है। ये भी आसान है, लेकिन बस बात समझने की होगी। So look here. The first is the range. रेंज अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो हमने क्लास विड्थ निकाली थी, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज का वही फॉर्मूला है, डैम सिंपल। द रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, द सिंबल फॉर रेंज इज आर। डन। आगे चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। अब आप ये सीख लें, असल चीज है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। The variance is the average of the squares of the distances. Each value is from the mean. देखिए कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में। वेरिएंस क्या होता है? जैसे आपकी क्लास है, मैं टेस्ट लेता हूँ और आपका एवरेज जो आता है ना पूरी क्लास का 70 एज्यूम, तो कुछ बच्चे 70 से लेफ्ट साइड पे होंगे, यानी लोअर वैल्यूज होंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स ज्यादा भी होंगे। ठीक है, तो हर बच्चे का जो मार्क है, स्टूडेंट का मार्क्स फ्रॉम द मीन यानी 70 से कितना कितना डिस्टेंसेस है, कितने कितनी वेरिएशन आ रही है उसके अंदर, दैट इज योर वेरिएंस। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल वैल्यू की जो पोजीशन है फ्रॉम द मीन। तो वेरिएंस क्या होता है? इज द एवरेज, किसका निकालते हैं? ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। द सिंबल फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मैंने आपको बताया था, सिग्मा इज द ग्रीक लोअर केस लेटर सिग्मा, इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं। The formula for the population variance is sigma square. स्क्वायर होगा इसके ऊपर वेरिएंस के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसी का अंडर रूट ले लिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन n, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस मिल गया। इसमें x इंडिविजुअल वैल्यू है, म्यू इज द पॉपुलेशन इन, एंड इज द पॉपुलेशन साइज का मतलब टोटल वैल्यूज इन द डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का अंडर रूट ले लिया जाए, वेरिएंस का you just take the positive square root, that is the standard deviation. देखना आप, इसका अंडर रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा ऑन द लेफ्ट साइड, और इसका अंडर रूट लेंगे, श्योरली इट विल रिमेन द अंडर रूट साइड। ये पॉपुलेशन के बारे में है। अब इसी का फॉर्मूला सैंपल के लिए थोड़ा सा क्या चेंज होगा, यहाँ म्यू की जगह क्या आना चाहिए? x बार आना चाहिए, यहाँ छोटा n आ जाएगा, स्मॉल n, लेकिन n -1 लेंगे, सैंपल के लिए n -1 होगा। देखिए जरा, ये सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिया। चलिए, वो म्यू की जगह उसने x बार कर दिया, स्क्वायर लिया, उसको एवरेज लिया, सम करके n से डिवाइड कर दिया। हालांकि इसको अब आया, देखे ना, वहां पे वो आगे डिस्कस कर रहे हैं ना कि हम एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, n-1 लेते हैं, हमारा आंसर बेहतर आता है।
तो द फॉर्मूला फॉर द सैंपल वेरिएंस डिनोटेड बाय एस स्क्वायर, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने किससे शो किए हैं, बाय सिग्मा स्क्वायर, और सैंपल का वेरिएंस किससे शो कर रहे हैं हम, एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, एक्स बार इज सैंपल मीन, एन इज द सैंपल साइज। डन। इसी का जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो वेरिएंस की बात हो रही थी, अंडर रूट के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखो फॉर्मूला फॉर द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में आपने इसका अंडर रूट लिया, एस स्क्वायर का अंडर रूट एस हो गया, और राइट साइड का अंडर रूट सेम थिंग, x is the individual value, x bar is the sample mean, and n is the sample size, तो n minus 1 का सैंपल में आप n minus 1। अच्छा, एक अच्छी बात और बताता हूँ मैं आपको कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में लिटिल बिट एफर्ट ज्यादा मांगते हैं, ये दोनों फॉर्मूला जो अभी आपको बताएं, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक वर्किंग फार्मूला कहलाता है फॉर बोथ सैंपल और पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। देखिएगा जरा, ये आ रहा है आपके सामने, ये देखो। अच्छा, ये सैंपल के लिए ज्यादातर है यूज करते हैं। The shortcut formula for computing the variance and the standard deviation for data क्या लिखा हुआ है ये, obtained from samples are as follows। मेरा ख्याल है this is the best formula जो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखने में लग रहा है लंबा, लेकिन ये कैलकुलेशन में ज्यादा आसान है। You remember this formula। तो ये वेरिएंस में स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर n टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू n माइनस 1। ये तो आपका हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। इसी का आप अंडर रूट ले लेंगे तो नेक्स्ट साइन में आप देखिए s will become s square will become s for the standard deviation और राइट साइड का अंडर रूट। ये है अनग्रुप डेटा जिसमें खाली छोटा सा डेटा दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर आपकी ग्रुप डेटा हो, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिया था ना, शुरू में क्वेश्चन किया था जहां से हमने फिर 3 ग्राफ्स बनाए थे, तो अनग्रुप डेटा को हमने जहाँ पे फास्ट फूड सैंडविचेस के अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम्स थे उस क्वेश्चन, तो वहां हमारी फ्रीक्वेंसी भी आई थी, रिमेम्बर। तो अब आपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ एफ के साथ इस एक्स स्क्वायर को साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ एक्स के साथ दोनों वेरिएबल्स के साथ फ्रीक्वेंसी लगा दीजिएगा। यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्रुप डेटा के लिए। अभी ये फॉर्मूला किसके लिए, अनग्रुप, इज नो फ्रीक्वेंसी। So both the formulas for variance and the standard deviation, they are for the ungrouped data. But if you multiply x square and this x with f, f is the frequency, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ग्रुप डेटा के लिए। अब चलें, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। Find the sample variance and the standard deviation for the amount of European auto sales for a sample of 6 years. The data are in millions of dollars. एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है आपके सामने। वो कहता है ये ऑटो सेल्स है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप इसका क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन। टाइम हमारे पास 1.5 मिनट रह गया, 1.5 पौने 2 मिनट। दरअसल इस एग्जांपल को कम से कम समझ लीजिए, फिर बाकी हम बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका मीन निकालें, क्योंकि एक्स बार हमें चाहिए ना। तो सबको आपने सम अप कर दिया, 75.6। अच्छा, इनका स्क्वायर्स भी ले लें, ये ले लिया हमने, इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर लिया और इनको भी सम अप कर दिया। ये 2 कॉलम्स बन गया। एक्स तो वही वैल्यूज होती हैं जो आपको डेटा में गिवन हुई होती है। ये एक्स वैल्यू, ये एक्स है, x1 x2 x3, ठीक है। ये ऐड हो गया, एक सिग्मा एक्स आ गया, फिर इनको स्क्वायर कर दिया सबको अलग अलग, और फिर इनका सिग्मा किया, तो सम ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज, ये आंसर आ गया आपका 958.9। ये 2 वैल्यूज निकालने के बाद आप इसको फॉर्मूला में फिट कर दीजिए। The formula is s square for the variance, ये variance निकल रहा है, n times sigma x square minus sigma x whole square upon n into n minus 1। तो n क्या है, n is the total values in the data, 6 है। sigma x square आपने निकाला है, ये वैल्यू आपकी sigma x square यहाँ रख दें। sigma x भी निकाला हुआ है, ये आपकी 75.6 यहाँ रख दिया, ठीक है। n आपका 6 है और फिर 6 minus 1, ओके। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, ये आ गया 6 5 30, नीचे आ गया, ऊपर डिफरेंस लिया 38.28 डिवाइडेड बाय 30, डिवाइड किया तो 1.276। ये आंसर किसका है, एस स्क्वायर का। एस स्क्वायर को हम कहते हैं
वेरिएंस ऑफ द सैंपल। ओके, और इसका जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो द वेरिएंस इज 1.28, इसको राउंड ऑफ किया तो 1.28 हो गया।